Assalamu alaikum everyone. I hope that you all are fine. So beta, today in this class we will learn about the sunnah way of eating. As you all can see on the screen that I am sharing. Okay, all of you can see the screen clearly. Yes, just raise your hand. Yeah. Okay. सो आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से खाना खाते थे, सुन्नत तरीका क्या है खाना खाने का. ओके, all of you have to know this, that Allah subhanahu wa ta'ala sends rain from the sky and from the cloud, and then he enables the earth to fertile, and he grows vegetables and fruits for us. This is the source of food for us. अल्लाह ताला ने क्या है, सब्जियां भी बनाई हैं, फल भी बनाए हैं. इसी तरह से हमारे खाने के लिए क्या है, जानवर बहुत सारे पैदा किए हैं जिनको हम ज़िबा करके खाते हैं. सही, ऐसा ही है. तो क्या है, अल्लाह ताला ने ये सब चीज़ें किसके लिए अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई हैं, इंसानों के लिए पैदा फरमाई हैं. तो जब अल्लाह ताला ने खाने की चीज़ें पैदा फरमाई हैं तो इसी तरह जब इसके खाने का तरीका भी हमें बताया है. सो टुडे इन दिस क्लास वी विल लर्न अबाउट how and which what is the proper and perfect way of eating anything. So today in this class we will learn about this. Okay, so beta, as all of you can see on the screen, this is the sunnah way of eating. These are the etiquettes. Islam highly appreciates the etiquettes and sunnah of our holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and all of us have to follow these sunnah. So let's start. Whenever we are going to eat anything, the first thing we have to do is to wash our hands. We have to wash our hands before we begin our meal. Okay, before begin eating our meal, we have to wash our hands. We have to make sure that our hands are free from any dirt and any dust. कोई भी हमारे हाथों पर गंदगी या जरासीम वगैरह नहीं होने चाहिए. So we have to make sure that we are using soap for washing our hands. So this is the number one sunnah we have to follow when we are going to begin our meal. Now the second sunnah is to say Bismillah. We have to say Bismillah before we start our meal. So the Bismillah is as our holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, whenever whenever any one of you start having meal, he or she have to recite Bismillah. Understand everyone? So which dua we recite before having meal? Bismillahi wa ala barakatillah. This dua we have to recite before having our meal. Okay, so or if someone forgot to recite this dua Bismillahi wa ala barakatillah in the beginning, और उसे खाने के बीच में याद आ रहा है कि उसने दुआ नहीं पढ़ी थी, so now he have to recite Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. So everyone please repeat after me this dua. When we are going to start our meal, we have to recite Bismillahi wa ala barakatillah. Yes, please repeat after me. Bismillahi. Everyone have to repeat after me. Bismillahi barakatillah. Yes. Bismillahi wa ala barakatillah. Very good. And if someone forgot to recite this dua when he begin the meal, और उसे खाने के बीच में याद आ रहा है, तो वो क्या पढ़ेगा? बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु. Yes.
Please repeat after me. Bismillahi. Yes. आपने सबको अनम्यूट कर दिया। नो, आपकी आवाज मुझे आ रही है। Yes, please repeat after me. मिस प्लीज मुझे वो म्यूट नहीं करिएगा प्लीज मिस। Why? अभी आप अनम्यूट हैं. You can say repeat after me. Bismillahi. बिस्मिल्लाहि Awwalahu. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Wa akhirahu. If someone forgot to recite dua in the beginning of his meal और उसे बीच में याद आ रहा है, so he has to recite. Ayan, please repeat after me. Bismillahi. Awwalahu Wa akhirahu. wa akhirahu. Bismillahi awwalahu wa Wa akhirahu. akhirahu. Very good, everyone. Okay, now we are on third sunnah. This is to eat together. We have to attempt to eat together as often as we can. अच्छा, जितना ज़्यादा हमारे लिए ये चीज़ मुमकिन हो कि हम साथ मिलकर खाना खाएंगे. This is the sunnah of our holy prophet Muhammad sallallahu alaihi वसल्लम. और एक चीज़ याद रखने की, ये सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है कि वो जो है वो मिलकर खाना खाते थे यानी सबके साथ, बल्कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो इस्माइल अलैहिस्सलाम के क्या थे, वालिद थे, फादर थे, उनकी भी सुन्नत यही थी कि जब भी वो खाना खाते थे तो वो लोगों को ढूंढते थे कि कोई उन्हें मिल जाए ताकि वो उसके साथ खाना खाएं. सही. सो द सुन्ना वे ऑफ ईटिंग इज टू ईट टुगेदर. हमें अलग अलग नहीं खाना, बट इफ इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू ईट टुगेदर यू कैन ईट सिंगल. अगर इस तरह है कि आपको कहीं जाना है या सिर्फ आप ही खाना खा रहे हैं तो यू कैन ईट सिंगल. बट अगर आप सब फैमिली के साथ हैं, घर पर हैं, तो और अभी तो इस लॉकडाउन में it's very easy for us to follow this sunnah because we all are together now these days. है ना? Am I right? Yes? Malahim? Am I right or wrong? This is very easy in these days to follow this sunnah because all of us are at home, so we can eat together. Okay? Now, the fourth one is to sit on the floor. We have to sit on the floor while eating. This is also the sunnah of our holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam because when he eat, he used to eat on the floor. हमें किस तरह जमीन पर खाना है, लाइक अगर कारपेट है जो भी हमारा फ्लोर पर बिछा है उस पर हमें बैठना है. बट इफ इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू सिट ऑन द फ्लोर यू कैन सिट on the chair or on anything you have. Okay, but the proper way and the best way of eating is to eat on the and you have to sit on the floor. Okay, ये आपका प्रोसेस, ये जो स्टाइल है बैठने का, ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि इस तरीके से आप क्या है कम भी खाना खाते हैं और आपका स्टमक भी ठीक रहता है और आपका डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो भी अच्छा रहता है. तो क्या ये आपके लिए ही बहुत ज़्यादा बेस्ट है कि यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर सिटिंग ऑन द फ्लोर व्हाइल यू आर ईटिंग फूड. ओके एवरीवन, अंडरस्टैंड? Now, the fifth sunnah is to eat with your right hand. We have to make sure that we are eating or drinking with our right hand. Always use your right hand whenever you are eating or drinking anything, because अल्लाह ताला ने ही हमें ये दोनों हाथ दिए हैं, सीधा हाथ भी और उल्टा हाथ भी, और अल्लाह ताला को ही ये चीज़ पसंद है कि हम क्या करें, राइट हैंड को यूज़ करें. इसी वजह से हम क्या करेंगे, राइट हैंड को यूज़ करेंगे. सही. सो नाउ द सिक्स्थ सुन्ना इज टू ईट फ्रॉम योर साइड. ओके, अच्छा एक चीज़ कि द फिफ्थ सुन्ना इज टू ईट विद योर राइट हैंड, बट इफ इट्स नॉट पॉसिबल फॉर समवन कि अगर कोई लेफ्टी है और उसने कभी भी इस चीज़ को नहीं प्रैक्टिस किया तो उसके लिए अगर पॉसिबल नहीं हो रहा खाना, सो ही और शी कैन यूज हिज लेफ्ट हैंड. बट वी हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग ऑन दिस दैट वी हैव टू ईट विद आवर राइट हैंड. और यही अच्छा तरीका है खाने का. हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि हमें
सीधा हाथ क्या है यूज करना है whenever we are eating or drinking something. Okay, now the sixth sunnah is to eat from your side. We have to eat from the side which is closest to us. Okay, जो साइड हमसे सबसे ज्यादा करीब होगी प्लेट में से, हमें उसी साइड से खाना है. अंडरस्टैंड एवरीवन? यस, वेरी गुड माहम. ओके, प्लीज असर टर्न ऑन योर कैमरा. ओके, एक चीज आपको बताने की है कि एक मरतबा हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु क्या थे, एक सहाबी हैं, आप लोग की तरह छोटे से बच्चे थे वो भी इस वक्त. तो क्या है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना खा रहे थे और क्या कर रहे थे वो वो प्लेट में क्या है अपना हाथ घुमा घुमा के, यानी कहीं से भी खा रहे थे आगे पीछे से. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अल्लाह का नाम लेकर खाओ और अपने सामने से खाओ. सो द सुन्ना वे ऑफ ईटिंग इज टू ईट फ्रॉम योर क्लोजेस्ट पार्ट ऑफ योर प्लेट. ओके, तो हमें क्या करना है, अल्लाह ताला का नाम भी लेना है. दिस इज द सुन्ना एंड द अदर सुन्ना इज टू ईट फ्रॉम योर क्लोजेस्ट पार्ट ऑफ योर प्लेट. ओके, ये तब है जब प्लेट में आपकी पूरी प्लेट में क्या है, वन टाइप ओनली, यू हैव वन टाइप ऑफ आइटम इन योर होल प्लेट. पूरी पूरी प्लेट में जस्ट एक ही चीज़ है, लाइक राइस है या सालन है, कोई भी चीज़ एक है. तो जाहिर सी बात है, ये एक अजीब सी बात है ना कि जब आप पूरी प्लेट में हाथ घुमा रहे हैं, क्योंकि आप कहीं भी हाथ लेंगे लेकिन मिलनी तो आपको एक ही चीज़ है. अगर राइस है तो यहाँ पे भी राइस है, हर साइड पे प्लेट के राइस ही है. पूरी राउंड प्लेट में आप घूम जाए कहीं भी चल जाए लेकिन आपको राइस ही मिले. लेकिन तो इस तरह से अगर खाना है तो क्या है, यू हैव टू ईट फ्रॉम योर क्लोजेस्ट साइड. ओके, लेकिन अगर इसके ऑपोजिट है, इस तरह से है कि एक प्लेट है बट यू हैव डिफरेंट आइटम इन वन प्लेट, सो you can eat from wherever you want. Okay, आप किसी तरफ से भी खा सकते हैं, क्योंकि अब तो डिफरेंट चीज़ें आ गई, अलग अलग चीज़ें हैं. तो क्या है, इसमें आपको अलाउ है कि आप जिस तरफ से भी लेना चाहें आप कोई चीज़ ले सकते हैं. क्योंकि इस वक्त तो आपका हाथ घुमाने का एक फ़ायदा है कि आप, क्योंकि अलग अलग चीज़ें हैं तो आप हाथ बढ़ा सकते हैं. लेकिन अगर प्लेट में कोई एक ही चीज़ है तो आपकी सुनना तरीका क्या है, यू हैव टू टेक फ्रॉम योर क्लोजेस्ट एरिया. ओके, अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, very good. Now, the seventh sunnah is to eat with your three fingers. Three fingers. These three fingers are the thumb, the middle finger, and the index finger. Just show me your three fingers. Thumb, first thumb, middle finger, and the index finger. Index. हाँ, अब इस यस, आप थंब खोलेंगे और उसके बराबर वाली और उसके बराबर वाली इंडेक्स. 3 thumb Hassan, yes, yeah, these 3 fingers you have to use whenever you are eating something from your hand. Okay, like इसमें है अगर आप स्पून यूज करें तब तो फिंगर्स की कोई बात ही नहीं है. लेकिन अगर आप चपाती वगैरह इस तरह खा रहे हैं तो आप इसको 3 फिंगर्स ही यूज करेंगे. बट इफ यू आर ईटिंग ऐसी आप कोई चीज़ खा रहे हैं जिसमें आपको ज़्यादा फिंगर्स की नीड है तो फिर आप इससे भी ज़्यादा फिंगर्स को यूज़ कर सकेंगे. द पर्पज ऑफ सेइंग दिस that you have to eat your 3 fingers because it show your cleanliness. ये जो है वो अब अब्दुल्ला, sit properly. You are in class right now. Sit. Yes. Very good. तो हमें क्या करना है, हमें अपने 3 फिंगर्स को यूज करना है. द वेरी गुड ज़ैनब, वेरी गुड. लाइक ज़ैनब, अपनी हमें थंब एंड द मिडिल फिंगर एंड द इंडेक्स फिंगर, इन 3 फिंगर्स को हमने खाने के वक्त यूज करना है. लेकिन अगर ऐसा है कि आपको ऐसी कोई चीज़ खाना है जिसमें आपको ज़्यादा फिंगर्स की ज़रूरत है तो आप और फिंगर्स भी यूज कर सकते हैं. ओके, अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके, नाउ द 8th sunnah is to don't criticize the food. Everyone, please turn on your camera. The Ayan Abbas, please sit properly. Asad Ahmed,
Turn on your camera. Start video, please. Yes. Now, the eighth sunnah was don't criticize the food. हमें खाने की बुराई नहीं करनी है. If you are not liking the food or the taste of food, तो इसका मतलब यही नहीं कि हम क्या है खाने की बुराई स्टार्ट कर दें. तो अगर हमें खाना पसंद नहीं, so in this condition the sunnah way of eating food is कि आप वो खाना मत खाएं. अगर आपको कोई खाना नहीं पसंद है तो आप वो खाना नहीं खाएं. But it's not you are not you don't have the right to criticize the food. आप उस खाने की बुराई नहीं कर सकते क्योंकि क्या है अल्लाह ताला की नेमत है. If you are don't liking it or its taste, just leave it. आप उसको छोड़ दे, मत खाएं, बट उसको बुरा भला नहीं कहें. सही? क्योंकि क्या है अल्लाह ताला का हमें हर हाल में शुक्र अदा करना है क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ये फूड दिया है. बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास ये खाने को भी नहीं. तो हमें बी ग्रेटफुल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड डोंट क्रिटिसाइज द food if you don't liking it. Abdullah, please sit properly. Yes, sit. Yes. Now, एक चीज क्या थी कि सुनना, एक सुनना क्या है, हमें खाने की बुराई नहीं करनी. बट द नंबर 9 इज टू प्रेज गुड फूड. बुरा खाना है तो हमें उसकी बुराई नहीं करनी, बट अगर अच्छा खाना है तो हमें उसकी तारीफ करनी है. ओके, this is the sunnah of our holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He used to praise good food. Okay, leave a good compliment if the food has good taste. Understand everyone? If Ayan is cooking anything, Ayan, Abbas or Hassan, like Abraham, are they if they are cooking anything like Maggie, or and the Maggie is tasty, so we have to praise that food that they had made it with great taste. सही, हमें बहुत एक अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट देना है कि अब्राहम लाइक अयान इन लोगों ने क्या है ये बड़ी अच्छा सा खाना बनाया है. सो हमें क्या करना है, उसकी तारीफ करनी है बिकॉज दिस इज द सुन्ना ऑफ आवर होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. सो आज से हमें सुन्ना को फॉलो करना है कि जो भी आप घर में खाना बनाएगा और अच्छा खाना है तो उसकी हमें तारीफ करनी है. बट if you are not liking the food or its taste, you don't have the right to criticize the food. Okay, understand everyone? Yes. Okay. Now the 10th one is to don't waste food. We don't have the right to waste our food. This food includes that falls जो इसमें वो खाना भी शामिल हो जाता है जो अगर हम खा रहे हैं और हमसे अपने फूड मैट पर और दस्तरखान पर हम क्या थोड़ा सा खाना गिर गया है तो उसको भी हमें ज़ाया नहीं करना है. We have to clean it and then eat it if it's possible for us. क्योंकि दस्तरखान क्या है, हमारा फूड मैट साफ होता है और उससे हम उठाकर खा सकते हैं. ओके, हमें क्या है, असल चीज़ क्या है, हमें इस खाने की क्या है कदर करनी है और अल्लाह ताला को ग्रेटफुल रहना है कि अल्लाह ताला जिस तरह से बहुत से लोगों को खाना नहीं मिला और वो भूखे हैं, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें घर पे रहते हुए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों से वी आर ब्लेस्ड कि हमें हर चीज़ बहुत अच्छी तरीके से मिली हुई है. सो हमें उसका शुक्र अदा करते हुए वी हैव टू नॉट वेस्ट आवर food because this is the sunnah of our holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Now on which sunnah we are? 11th. Yes, Ayan. Number 11th or 12th? 11th. Yes. So the 11th one is to avoid overeating. हमें क्या है, ज़रूरत से ज़्यादा खाना नहीं खाना है. Only eat as much as that will fill your tummy. इतना ही खाना है कि हमारा उतना फूड हमारी टमी को फिल कर दे. क्योंकि अब ओवर ईटिंग होने से क्या होता है, हमें नोजिया फील हो सकता है, हमें वॉमिट हो सकती है, हमें स्टमक कुछ इन्फेक्शन कोई भी चीज़ हो सकती है. तो क्या है, उससे बचने के लिए क्या है, अल्लाह ताला ने जो नेमत दी है उसकी जितनी हमें ज़रूरत है उसका उतना ही इनटेक हमने करना है. अंडरस्टैंड एवरीवन? यस. ओके, तो क्या है,
हर चीज़ हमारे हर बॉडी पार्ट क्या है, अल्लाह ताला, खाना भी अल्लाह ताला की नेमत है और हर बॉडी पार्ट भी अल्लाह ताला की नेमत है। तो हमें उसके शुक्र अदा करते हुए उसके हिसाब से काम करना है, ओवर ईटिंग नहीं करनी है। ओके, नाउ then we are near to finish our food. The 12th sunnah is to lick your fingers. उंगलियों को क्या करना है, हमें क्लीन करना है. We have to lick our finger after we have finished our food. जब हम अपना खाना कंप्लीट कर लेंगे और जो हमारी, अगर we are eating from our fingers, like अगर आप चपाती खा रहे हैं, आप स्पून यूज कर रहे हैं तो उसमें तो आपको जरूरत नहीं, but if you are eating with your fingers, then after finishing your food you have to lick your fingers. ये भी आपकी क्लीनलीनेस में ही शामिल होता है कि क्या है, आपकी फिंगर्स पर कुछ भी लगा हुआ ना हो, क्योंकि अब हम इतने बड़े हो चुके हैं तो हम अपनी पर्सनालिटी को, we have to enhance our personality. So we have to follow this sunnah whenever we have finished our food and we are eating with our fingers. So at the end we have to lick our fingers. उंगलियों को हमें क्या करना है, साफ करना है. So now we are ending our food. तो जब खाना खत्म हो गया, so now we have to praise Allah subhanahu wa ta'ala कि अल्लाह ताला ने हमें खाना दिया and He enables us to eat that food. So from today all of us will follow these sunnah. Inshallah, who will follow these sunnah with all of us will follow these sunnah. Just raise your hand if you are ready. Are you ready to follow this sunnah? Yes, just raise your hand. Very good everyone. So your homework is to follow these sunnah when you are going to eat your food.